Hi, welcome back to my channel Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. So, if you have not seen my last video on rumination disorder, please go ahead and check. And if you have not subscribed my psychopathology channel, please go ahead and subscribe my channel and press the bell icon so that you can know about my new videos. In my this video, first I will talk about diaphragm breathing, and because that is the thing which was left in my last video on rumination disorder. And also we will talk about RFID disorder, which is an eating disorder. In this, I will talk about symptoms of RFID disorder, diagnosis and treatment of RFID disorder, what causes RFID disorder, prevalence of RFID disorder. Okay, so first talk about diaphragm breathing, how we do it and how it affects your rumination syndrome disorder. Okay, so we have to kneel down on a flat surface, and you have to put one hand on the chest, one hand on the fat, one hand on your knees in this size, and then you have to do exhale and inhale and exhale, so that your stomach muscles can become strong, and then the regurgitation thing cannot be occur again and again. And at this time you can do at this stage as well. So that is the same thing, you're doing it in the sitting way. Okay, and inhale and exhalation. So that is what how we do diaphragm breathing to remove, to treat rumination disorder. Okay, let's talk about RFID disorder, and that is an eating disorder, that is avoidant restrictive food intake disorder. A is avoidant, R is restrictive, F is food, and I is intake, and D is disorder. That is totally known as RFID disorder. Okay, that is also an eating disorder. Okay, what is avoidant restrictive food intake disorder? इसमें क्या होता है? Avoidant restrictive food intake disorder is a condition that cause you to limit the amount of type of food you eat. It isn't the result of distorted self-image or an adapt to body weight, which is common among the other eating disorder. क्या होता है? इसमें आप लिमिट करते हो किसी फूड को खाने से, या फिर किसी टाइप ऑफ फूड को खाने से, लेकिन इसमें आप अपनी सेल्फ इमेज का डिस्टॉर्टेड इमेज नहीं बनाते हो। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपका आप डिस्टॉर्टेड इमेज बनाते हो, और या बुलिमिया में आप डिस्टॉर्टेड इमेज बनाते हो, बस इसमें नहीं होता है। आरफिड कैन कॉज यू टू लूज इंटरेस्ट इन ईटिंग, ये आपका ईटिंग में लूज इंटरेस्ट हो सकता है। फील एंशियस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईटिंग, अब आपका फील एंशियस हो सकता है कॉन्शियस ऑफ ईटिंग में, लाइक चोकिंग ऑन फूड और वॉमिटिंग। अवॉइड फूड्स दैट हैव अनवांटेड कलर, टेस्ट, टेक्सचर और स्मेल, हम वो फूड्स अवॉइड करेंगे जिसमें अनवांटेड कलर होगा, टेस्ट होगा, टेक्सचर और स्मेल होगा। यू माइट हियर योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कॉल ऑर्फिड अ सेलेक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर। भाई आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, आपको कौन सा टेस्ट चाहिए, कौन सा टेक्सचर चाहिए, कौन सा स्मेल चाहिए, और आप हर फूड को नहीं खा रहे हो, कुछ टाइप ऑफ फूड को अवॉइड कर रहे हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। You, अब इसमें RFID can affect your nutrition intake, can affect your overall health and lead to threatening complication if left untreated। अब आप restrict कर रहे हो फूड हैबिट्स को, आप अपने हिसाब से ही फूड को restrict कर रहे हो, तो क्या हो सकता है? आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सारी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप कुछ वो फूड इनटेक बंद कर रहे हो, आप वही फूड खा रहे हो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स थिंग्स टू नो अबाउट आरफिड, avoidant restrictive food intake disorder. It is an eating disorder involving the avoidance of food and intake fails to meet nutritional needs। अब आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जो अवॉइड कर रहे हो फूड के, जिससे आपका न्यूट्रिशन नीड्स मीट नहीं हो रहे। कैरेक्टराइज बाय साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस हो सकते हैं इसके। ऑफन कोएजिस्ट विद एंजाइटी मूड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये कोएजिस्ट करता है आपका एंजाइटी मूड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से। डिफर्स फ्रॉम पिकी ईटिंग, पिकी ईटिंग से डिफर करता है। नॉट लिंक विद बॉडी इमेज और डिजायर्ड वेट लॉस, वही मैंने पहले बताया, ये आपका बॉडी इमेज और वेट लॉस से डिजायर आपका नहीं, वो कर लिंक नहीं कर सकता है। ट्रीटमेंट आपका हो सकता है फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यहाँ पे अप्रोच में हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं साइकोलॉजिकल साइंस ऑफ आर्फिड क्या होते हैं। वर्सनिंग पिकी ईटिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा पिकी ईटिंग है। अवॉइडिंग और रिफ्यूजिंग एन एंटायर फूड ग्रुप, आप एक एंटायर फूड ग्रुप को ही अवॉइड कर दोगे, जैसे आप वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल बंद कर दो,
ठीक है, या फिर आप नॉनवेज खाना बिल्कुल ही बंद कर दो। सेंसिटिव टू स्मेल, टेक्सचर एंड टेम्परेचर, आप स्मेल, टेक्सचर और टेम्परेचर से भी सेंसिटिव हो जाओगे। ओनली ईटिंग फूड ऑफ अ सिमिलर कलर और ब्रांड, आप एक ईटिंग और फूड को सिमिलर कलर और ब्रांड के ईट करोगे। एंजाइटी अराउंड न्यू फूड्स, अब अगर आपके सामने कोई नया खाना रख दिया है तो आप उसको एंजाइटी होने लगी, इसको खाना है नहीं खाना है, कैसे खाना है क्या करना है, तो उसको एंजाइटी में खाओगे भी नहीं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, कभी कभी आपको लैक भी हो सकता है इंटरेस्ट फूड में। फियर्स अराउंड फूड फूड लाइक फियर ऑफ वॉमिटिंग, चोकिंग, आपको फियर हो सकता है वॉमिटिंग और चोकिंग का। अवॉइड सोशल सिचुएशंस, बिकॉज आपको वहां पे खाना खाना पड़ेगा, तो आप सोशल सिचुएशन अवॉइड करोगे। ठीक है। अवॉइड एंड रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर में आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फियर ऑफ चोकिंग वॉमिटिंग, वही जो पहले बात करी, फटीग रहेगा क्योंकि बॉडी में फूड और न्यूट्रिशन वैल्यू जा नहीं रहा है, एक्सेस एनर्जी भी हो सकती है, कोल्ड इंटॉलरेंस भी हो सकता है, नो बॉडी में स्ट्रगल्स होते हैं, नो फियर ऑफ वेट गेन, ओनली रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक। ठीक है। व्हाट कॉजेज आरफिड, आरफिड के कॉजेज क्या होते हैं? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर इज अननोन, सारे फीडिंग ईटिंग फिटनेस डिसऑर्डर का एग्जैक्ट कॉज है नहीं, तो उसी की तरह अननोन है। रिसर्च सजेस्ट इट मे बी द रिजल्ट ऑफ एंजाइटी और फियर की वजह से हो सकते हैं। जेनेटिकल चेंजेस, सोशल कल्चर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ट्रॉमा, जैसे कुछ सोशल कल्चरल में आपका कुछ लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, या फिर आपका नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो कल्चरल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से आप लोग कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी बॉडी में कम हो जाती है क्योंकि आप एक टाइप का फूड ही अवॉइड कर रहे हो। ट्रॉमा की वजह से भी आपका हो सकता है फूड अवॉइड करना। ठीक है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर अवॉइडिंग रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर? ठीक है। अब आपके रिस्क फैक्टर्स क्या, हैड अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस स्पेशली इन्वॉल्विंग फूड इनसिक्योरिटी, फोर्स फीडिंग, चोकिंग, एटीसिटी। ओके, तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है अगर आपके साथ किसी भी फूड को इन्वॉल्व करके। ठीक है। हैव एन अंडरलाइन कंडीशन दैट अफेक्ट्स योर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें आपका एंजाइटी, डिप्रेशन और एडीएचडी हो सकती है। हैव एन एवर्जन टू सर्टेन टेक्सचर्स, ठीक है, एवर्जन हो सर्टेन टेक्सचर्स पे। फियर दैट फूड विल हार्म योर बॉडी, अगर आपके अंदर फियर है कि आपका बॉडी पे फूड हार्म करेगा। हैव अ बायोलॉजिकल फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, अगर किसी को और भी कोई फैमिली हिस्ट्री में आपके ईटिंग डिसऑर्डर है तो आपको आरफिड हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं? मॉल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि आपका सही से बॉडी में मॉइस्चर पहुंच नहीं रहा है, न्यूट्रिशन पहुंच नहीं रहे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं सही से पहुंच रहे हैं, एनीमिया हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है क्योंकि आपको वाइटामिन नहीं मिलेंगे, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, डिलेड प्रोबर्टी क्योंकि वही न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी में नहीं मिल रही है, चेंजेस टू योर फिजिकल ग्रोथ। ठीक है। अब आपको डायग्नोज कैसे करेंगे इस टेस्ट को? अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल लुक फॉर certain criteria when diagnosing avoidant restrictive food intake disorder. They will make an RFID diagnosis if the following are true. ठीक है। लिमिटेड फूड इनटेक लीड्स टू सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा, ग्रोथ डिफिकल्टीज फॉर चिल्ड्रन, योर बॉडी इजंट गेटिंग एनफ न्यूट्रिएंट्स, वही वाली बात फिर से आ रही है, you're dependent on tube feeding or taking vitamins and supplements to get nutrients, and और फूड रिस्ट्रिक्शन अफेक्ट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी आपका एंजाइटी रहेगी, इरिटेटेड बिहेवियर रहेगा, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लिमिटेड फूड इनटेक इजंट कॉज्ड बाय फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं है, रिलीजियस फास्टिंग और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन और ट्रीटमेंट की वजह से है। लिमिटेड फूड इनटेक इजंट कॉज्ड बाय नेगेटिव बॉडी इमेज और डिजायर टू लूज वेट और चेंज इनटू योर बॉडी शेप, तो ये और ईटिंग डिसऑर्डर से लिंक नहीं कर रहा है, तो इसमें बॉडी इमेज इश्यूज नहीं है। If limited food intake was the result of medical condition or treatment, it exceeds what's expected as side effect and causes major complication to your overall health. अगर आप बार बार लिमिटेड फूड इनटेक करो और ये बहुत ज्यादा हद तक हो गया है तो आपको मेडिकल कंडीशन और मेजर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं क्योंकि आपको न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी में मिल ही नहीं रही है, तो एनीमिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट फॉर आरफिड फोकसेस ऑन हेल्पिंग यू गेन मेंटेन हेल्दी वेट। ठीक है। वह आपका न्यूट्रिशन वैल्यू पे वर्क कर सकते हैं, डाइटिशियन से मिलके आपको हेल्दी वेट होना चाहिए। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन दैट अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ, आपके ओवरऑल हेल्थ पे कैसे कॉम्प्लिकेशंस पे वर्क करेंगे? नेविगेटिंग मेंटल हेल्थ सिचुएशन एंड फियर्स रिगार्डिंग फूड, आपको मेंटल हेल्थ सिचुएशन पे, फियर्स रिगार्डिंग फूड पे भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे और आते हैं, फिर इसमें आपका आता है
Recognizing problematic thoughts and behavior that affect your health. Feel less fear or anxiety around food. आपका less fear और anxiety कर सकते हैं food के around. Be more comfortable with sensory challenges. आपका comfortable होना चाहिए sensory challenges से. A healthcare provider may offer medications to help restore your mind and body, cold health, and prevent like life-threatening complication. तो anti-anxiety pills भी दे सकते हैं. These medications can be antipsychotic medications, antidepressant. वही मैंने बात करी. Antipsychotic दे सकते हैं, antidepressant दे सकते हैं. Antidepressant में lithium दे सकते हैं, antipsychotics में और other medicines दे सकते हैं, जिससे कि आपको help करेगा ये. अब बात नेक्स्ट वीडियो में एनरोक्सिया नर्वोसा के बारे में बात करेंगे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन दिस वीडियो, प्लीज कमेंट on my video, and in my next video I will talk about anorexia nervosa, which is also an eating and feeding disorder. So let's talk about anorexia nervosa in my next video. Thank you.